गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे. ओके, सो अगेन आई विल कंटिन्यू विद द डिफरेंशिएशन. लास्ट टाइम वी हैव डन 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया. टुडे वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ टेबल. ओके, a table of value f, g, f dash, g dash is given. Okay, what is mean by this? F मतलब any function, g means any function. F dash is the derivative of that function, g dash is the derivative of g. Okay, so understand this table first of all. यहाँ पे x की values given to you. x की value एक बार 2 है, एक बार 4 है, एक बार 6 है. मतलब एक बार x की value आपको substitute करना है 2, 4, 6. तो f of x is any function to you. We don't know. Okay, because यहाँ पे function दिया नहीं है. We have given directly the values. Okay, f of x. Okay, at x equals to 2, तो f of x की वैल्यू क्या होगी बार? ठीक है, समझना है ऐसे. f of x something is there. When you will put f की वैल्यू x की वैल्यू 2, f of 2 will be 1. Okay, similarly f of 3, x के बेस पे क्या रखना है? 4. f of 4, sorry, f of 4 will be 3 and so on. Similarly we will do for g. तो देखो g of x है, करेक्ट? तो x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो g of 2 will be 6. g of 4 पुट करेंगे तो 4. समझ में आया आपको? ओके, नाउ देखिए, see the first question is if rx, देखो क्या दिया है? rx is equal to f is a function of g is a function of x. इसको ऐसे पढ़ते हैं, f is a function of g is a function of x and we have to find r dash 2. r dash 2 मतलब होता है, r dash मतलब that is differentiation. Okay, so this is a derivative. So r का derivative is r dash. So rx है तो उसका derivative करना है और derivative करने के बाद you have to put 2. ठीक है, so you have to find derivative of r and we have to substitute 2. Okay, so first of all we will write, because everywhere we have a function of x, so differentiating with respect to x. So इसको differentiate करेंगे तो r dash x directly we will write. Okay, तो starting में मैंने आपको बताया था कि f(x) is any function, so इसका derivative क्या होता है? f dash x लिख सकते हैं हम लोग. We can write f dash x, या we can write dy by dx, या dy by dx. Okay, because y equals to fx है, so dy by dx. Right? y is equal to fx, तो इसको f dash x भी लिख सकते हैं या फिर dy by dx. This is the first derivative. So r dash x क्या differentiating with respect to this, so r dash x. Okay, now यहाँ पे लिखते हैं हम लोग d upon dx. यहाँ पे f है f of g of x. इसको आप ऐसे लिख लेते हैं f of g of x. Okay, so देखो आपको कंसीडर क्या करना है? कंपोजिट फंक्शन होगा एक तरह से. कैसे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो f is a function of g is a function of x. f is a function of this and this is function of x. Okay, so आपको ऐसा समझना है कि f is a function of f of x. ये पूरा x है, f of x. so ये f दिख रहा है, f dash पूरा लिख लेना है, x को आप एज इट इज लिख लेते हो. ठीक, अब कंपोजिट फंक्शन है, उसके अंदर ही है. ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है f dash dx. तो इसका करेंगे डेरिवेटिव d of dx g of x. ठीक है, so this will become f dash this and इसका फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव इज g dash x. ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, here it is r dash x and आपको चाहिए क्या? 2 चाहिए, तो put x equal to 2, so r dash 2, r फर्स्ट डेरिवेटिव 2 dash मींस मैं ऐसे बोल दे रहा हूं वहां पर f dash g of 2 g dash 2. Now we have g of 2 का वैल्यू चेक करो यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, ये डेरिवेटिव तो नहीं है, तो gx है, 2 पर क्या वैल्यू दे रहा है? 6. ठीक, g of 2 is giving you, देखिए यहाँ पर g of 2 is what? 6. So f dash 6. Are you getting what I am saying? g of 2 is 6. देखो यहाँ पर g of x है, x के वैल्यू 2 अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो g of 2 will be 6. g of 2 will be 6. अब यहाँ पे g dash 2, यहाँ पे आ जाओ, 2 पुट करने में क्या मिलेगा? 4. ठीक है, ये ओके, ये इसका अंदर का फंक्शन है. करेक्ट,
ये एक पार्ट हो गया। एफ डैश दिस साथ में ये अलग है। सो अब यहाँ पे एफ डैश 6 क्या मिलने वाला है, एफ डैश 6 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 एंड दिस इज एक्सेल 4 -16। ओके, अंडरस्टूड। सो कॉपी कर लीजिए। ओके, इसके बाद में आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करते हैं। Okay, students, copy. Okay, now we'll solve the second one. Again क्या दिया हुआ है, rx is given to x. rx का क्या है फंक्शन, ये सामने क्या दिया हुआ है, g of 3 plus f of x, correct? And we have to find r dash 4. Now we have to find, okay, it means जो फंक्शन r of x है उसका डेरिवेटिव लेना है, बिकॉज r dash है, r dash मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता है वो। So we have to take this, the first derivative of this part, okay, and उसके बाद आपको 4 पुट करना है। तो differentiating with respect to x, so this will become r dash x, लिखना d upon dx, g लिख लेते हैं करेक्ट, ब्रैकेट में 3 plus f of x, okay। अभी आप नोटिस करो एक चीज, when you are taking derivative of this part, तो g of x है पूरा, g of x, ठीक। तो g ऑफ, जैसे आपने यहाँ पे देखा r ऑफ x का क्या बनता है, r डैश x, वैसे g ऑफ x का क्या बनेगा, g डैश, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश दिस x पूरा, और ये x जो है दैट इज अगेन कंपोजिट फंक्शन, सो अगेन इनटू डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, करेक्ट। सो अभी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, r डैश x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विल बिकम g डैश 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव दैट विल बी 0, एक बार डेरिवेटिव इसका होगा, एक बार डेरिवेटिव इसका होगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव विल बी 0 एंड d ऑफ dx इज f ऑफ x, करेक्ट। सो g डैश 3 प्लस f ऑफ x, ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, ओके। बट वी नीड r डैश 4 बिकॉज राइट लेफ्ट साइड में क्या है, r डैश x है, सो पुट x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, so this will become r dash 4, so g dash 3 तो constant है, will remain as it is, f of 4 f dash 4, तो g dash को बाहर में एक टर्म है इनटू ये दूसरा, g dash 3 प्लस f of 4 क्या है चेक कर लेते हैं, f of 4 पुट करने पे f of 4 will be 3 and f dash 4 क्या मिल रहा है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव f dash 4 पुट करने पे विल बी गेटिंग 5, फिर हो गया g dash 6 into 5, g dash 6 क्या, g dash 6 पुट करने पे विल बी गेटिंग 7 और ये हो गया 5, 7 5 35, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू सॉल्व 3 थर्ड एंड फोर्थ, राइट, कॉपी कर लीजिए। Okay, student, done. Okay. Now see the question number third one देखिए, what is given, s of x equals to f of bracket 9 minus f of x, okay, and find h dash 4. Again sx is दिया हुआ है, ठीक है, this is the function in x दिया हुआ है, and we have to find the derivative and we have to put 4, okay. So again differentiating with respect to x, so this will become h dash x, so इसका देखो this is f of x, so ये हो जाएगा f dash 9 minus f of x, करेक्ट, और ये x का भी डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 9 minus f of x, so see यहाँ पे ठीक है, so this is f dash 9 minus f of x, ठीक है। नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और इसका डेरिवेटिव विल बिकम f dash x, okay, so now we have f dash 9 minus f of x, bracket close, and in bracket minus f dash, correct, सही है, okay। Now f dash 9 minus f of x, okay, अभी now
4 में फाइंड करना है तो पुट x इक्वल टू 4 तो x s डैश 4 इक्वल टू f डैश 9 माइनस f ऑफ 4 माइनस f डैश f डैश 9 f ऑफ 4 क्या है चेक करना है फंक्शन है 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 इन ब्रैकेट f dash 6 in bracket into f dash 4 f dash 6 क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए ठीक आप इस 6 पुट करना है तो क्या मिलेगा -4 करेक्ट बाहर है माइनस ये f dash 4 में क्या मिलने वाला है f dash 4 पुट करेंगे तो 5 मिलने वाला है ठीक तो माइनस प्लस 20 समझ में आप लोग को ओके थर्ड वन कॉपी कर लीजिए देन वी डू द नेक्स्ट वन लास्ट फोर्थ ओके फ्रेंड्स कॉपी नाउ द लास्ट वन अगेन s of x is what g of x यहाँ पे s क्या फाइंड करना है 6 ओके सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x so this will give us x as x so देखो we take derivative of this g of x है g of पूरा x कंसीडर करना है g of x तो ddx of g of x हो गया और उसके अंदर ये x है तो अगेन we will take the derivative of that part तो ठीक है ये क्या हो जाएगा g dash dx g of x है तो g dash x और ये g of x क्या होगा तो g dash x ओके तो x 6 पे फाइंड करना है तो पुट x इक्वल टू 6 तो h dash 6 इक्वल टू g dash g of 6 g dash 6 g dash g6 क्या है g6 पे देखो यहाँ पे 6 पुट करना है x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2 मिलने वाला है 2 इंटू g dash 6 अभी g dash 2 क्या मिलने वाला है g dash 2 पे 4 मिलने वाला है एंड g dash 6 पे क्या मिलने वाला है 7 28 are you getting what I'm saying okay see okay now copy this then friends okay now the expression question number 5 assume that f dash 3 means what function f है उसका डेरिवेटिव लिया है and after putting the value 3 will be getting -1 again g है एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव लिया 2 पुट करने पे will be getting 5 g of 2 is 3 देखो ये पार्ट गिवन है ओके वी हैव गिवन अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x ये दिया हुआ ठीक एक फंक्शन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx dy by dx का मतलब होता है f dash x ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx means what f dash okay x ओके ठीक सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फंक्शन क्या है f ऑफ g ऑफ x f ऑफ g ऑफ x तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी व्हाट f dash g of x okay this is the function y equal to this is the function okay so ये फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा f dash x okay so this is nothing but dy by dx and here we have to put x का वैल्यू 2 x का वैल्यू 2 पुट कर देना है यहाँ पर so this will become f dash g of 2 तो आपको मिल जाएगा आंसर ओके सिमिलरली we'll do here dy by dx means what differentiating with respect to x so we'll write dy by dx लिख लिया dy by dx मिला आपको y equal to this so देखो ये f है this will become f dash g of x and again उसके अंदर ये x जो है कंपोजिट फंक्शन है again we'll do derivative of g of x correct so this is f dash g of x and this will become g dash x okay डेरिवेटिव हो गया इसका ओके नाउ यहाँ पे लिखना है ये मैंने लिख लिया dy by dx is this now we write dy by dx x equal to 2 x equal to 2 तो जहाँ भी x हमारे को पुट करना है f dash g of 2 करेक्ट g dash 2 so f dash what is g of 2 g of 2 is 3 g dash 2
हाँ, what is f dash 3? f dash 3 is -1. What is g dash 2? 5. So this is -5. We got the answer. Very simple. Okay, copy that. Okay students, okay. Now see the question number 6. Here we have given h of x is root के अंदर we have given 4 times of f of x plus 3 times g of x. Okay. And f of 1 is 4, g of 1 is 3. Then जो भी function f है उसका derivative किया है, after putting 1 we will be getting 3. जो भी value function g है, okay, g of x है उसका derivative किया है and g of 1 is 4. Here we have to find derivative of h, okay, hx जो भी function होगा. So वहाँ पे we have to put 1. So we write this function first. देखो ये रूट के अंदर x दिख रहा है, ओके. डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज व्हाट 1/2 रूट x, 1/2 रूट x. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो दैट विल बिकम h डैश x. सो रूट x का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट x, जो पूरा रूट x से नीचे आ जाने वाला है. सो दिस विल बी 2 4 f of x प्लस 3g of x. अगर आपने देखा रूट सिर्फ x तो है नहीं, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड पार्ट. सो ddx ऑफ जो भी इनसाइड का पार्ट है ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, करेक्ट. सो 2 ओके. नाउ सी डेरिवेटिव दोनों पार्ट का करना है. We have two parts. Okay, so once derivative of this will be done, so we will take 4 constant part outside. ddx of f of x plus 3 will come out. ddx of g of x. Okay, take next. So root के अंदर लिखना है 4 f of x plus 3 g of x. देखो derivative of f x is what? f dash x. Derivative of g of x का क्या हो जाएगा g dash x. Okay, मिला. Now this is h dash x. So 1 put करना है, h dash 1 चाहिए तो we'll write h dash 1 यहाँ लिख लेते हैं, करेक्ट. So 2 4 f of 1 3 g of 1 4 f dash 1 3 g dash 1, करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 रूट के अंदर 4 इंटू एफ ऑफ 1 इज व्हाट 4. सो 4 लिख लेना है. जी ऑफ 1 इज व्हाट 3. एफ डैश 1 क्या है 3 है, 3 लिख लिया. जी डैश 1 क्या है 4 है, 4 लिख लिया, करेक्ट. तो देखो यहाँ पर क्या है 1/2. 4 4 is 16, 16 plus 9 25, root 25, 12 plus 12. ठीक है. So this is 12 plus 12 24, 24 बनता 24 in numerator, root 25 का 5. Okay, so this is 24 by 10, 12 by. Okay, copy it. Okay students, now see the question number 7. In the question number 7 we have to find x coordinates of all the points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x. Okay, एक कर्व है, ऐसा आपको कंसीडर करना है. कर्व है, उसका इक्वेशन है y equal to sin 2x minus 2 sin x. Okay, sin 2x minus 2 sin x. एक कर्व है, इसमें लिखा हुआ है and एक range is given to you. x की जो वैल्यू है it is between 0 to 2 pi. Sorry, तो 0 2 pi means 360. so x की वैल्यू 0 भी है, इससे ग्रेटर है, 360 भी है, इससे कम. ओके, एंड dy by dx is 0. तो dy by dx क्या होता है y equal to this function. dy by dx means what? It is a slope of tangent. ठीक है, दिस पार्ट यू विल सी इन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में. सो dy by dx मींस क्या होता है कि एक स्लोप है, एक पॉइंट है, करेक्ट. उस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप, ठीक, जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप dy by dx रहेगा, और वो जो स्लोप है वो क्या है 0, करेक्ट.
वो नहीं देखना है, क्या समझना है वो देखिए। बेसिकली we have given y, we have to find dy by dx, dy by dx आपको पता है that is first derivative, तो यहाँ पे लिख लेना है y sin 2x 2 sin x, right? So differentiating with respect to x, मैं लिख लेना है dy by dx, d of dx sin 2x, 2 is constant part will come out 2 ddx of sin x. डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, cos 2x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2x है ना, नॉट x, 2x है तो cos 2x हो जाएगा, और इसके अंदर 2x जो है अगेन कंपोजिट फंक्शन है, अच्छे से समझिए, ठीक, माइनस 2 इज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. ओके, नाउ cos 2x, ठीक, 2 is a constant part, again it will come out, and derivative of x, आपको बताया था derivative of x is 1, 2 cos x. So here 2 cos 2x, this will become 1. So this will become 2 cos 2x minus 2 cos x, this is dy by dx. But आपने देखा कि dy by dx क्या है, 0 है, so this part will be 0. So क्या हो जाएगा 2 cos 2x minus 2 cos x, 2 कॉमन है, so 2 will come out, cos 2x minus cos x, correct? 2 will go and will be divided, okay? It will divide 0 and will become 0. So क्या बचेगा, cos 2x minus cos x 0, ठीक? ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos 2x क्या होता है, 2 cos square x minus 1, ठीक है? एक रिविजन, क्विक रिविजन आपको दे देता हूँ, याद रखिए आप 1 minus cos 2x and 1 plus cos 2x. मैंने बताया था cos एक भेदभाव जैसा करता है, अगर वो प्लस होता है तो खुद को लेता है, ओके? 2 cos square x, 2 है एंगल, सो ये 1 हो जाता है, 1x. माइनस होता है, पता है, प्लस है तो खुद को लेता है, माइनस है तो पता है साइन वैल्यू, 2 sin square x. सो अभी देखो मैंने क्या किया, cos 2x, तो cos 2x, ठीक, ये दिया, 1 will shift to the right side, cos 2 cos square x minus 1 मिला, ठीक, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा. नाउ दिस इज 2 cos square x, अरेंज कर लेते हैं, cos x minus 1 equal to 0. सो यहाँ पे cos x है तो क्या करेंगे, लेट cos x equal to m, we'll take it as a m. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, minus m minus 1 equal to 0. Now this is quadratic equation, 2 1 is minus 2, 2 into minus 1 is minus 2, correct? So मल्टीप्लाई करने में माइनस आ रहा है, इसका मतलब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलने वाले, मिडिल टर्म दिस इज माइनस 1, तो माइनस 1 कम देता है, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड माइनस 2 1 माइनस 2, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1m माइनस 1 इक्वल टू 0. So 2m m minus 1 plus 1 m minus 1 0. So we have 2m plus 1 and m minus 1 equal to 0. Therefore 2m plus 1 equal to 0 और m minus 1 equal to 0. ठीक, फिर आप इतना कॉपी कर लीजिए. Okay, copied. Now we got 2m plus 1 equal to 0 और m minus 1 equal to 0. So ये ले लेते पहले, ठीक, ये वाला पार्ट. So m minus 1 equal to 0, so m equal to 1. और टाइम क्या था, आपने क्या कंसीडर किया था, cos x. इसका मतलब है कि cos x equal to 1. cos x की कौन कौन सी वैल्यू, देखो x की वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 भी है 2 पाई भी है और उसके बीच में भी है. तो देखो cos की अगर आप लिखते हो cos 0 90 means pi by 2 I am writing, फिर 180 3 pi by 2 2 to 72 pi. ओके, तो 0 से 2 pi जाना है, 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, दिस इज 360. तो वी नो दैट cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ऑल्टर करना है, 1 0 देन -1 देन 0 देन +1.
तो आपको देखना है कि cos की कौन वैल्यू 1 कहाँ मिल रही है आपको, cos 0 पे, करेक्ट, एंड cos 2 पे। सो cos x लिखा है, 1 कब मिलेगा, cos 0 पे, cos कैंसिल, x इक्वल टू 0, एक ये मिल गया। दूसरा cos x इक्वल टू 1 अब कब मिलेगा आपको, 2 पाई पे, cos x इक्वल टू cos 2 पाई, अगेन cos कैंसिल, x इक्वल टू 2 पाई, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिल गई, 2 पाई मिल गई। अच्छा, अभी ये पार्ट रह गया है, दिस पार्ट, अगेन 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, so 2m इक्वल टू माइनस 1, so m इक्वल टू माइनस हाफ, करेक्ट, बट m क्या है, cos x है, दैट इज माइनस हाफ। ओके, सो cos की कौन सी वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से ये बना लेते हैं, ठीक। इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड cosec, यहाँ पे tan एंड cot, यहाँ पे sec एंड cos, करेक्ट। सो यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है दैट इज 0 to 2 पाई, मतलब 0 से लेके, सबसे पहले चीज नेगेटिव कब मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है cos की वैल्यू नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्ट, बट cos की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं जाना है, थर्ड में आएंगे, करेक्ट, थर्ड में तो cos नेगेटिव है, ठीक, थर्ड में भी cos नेगेटिव, बिकॉज tan क्वाड्रेंट cos नहीं है, बट थर्ड तक जाना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड का रेंज जो है वो ग्रेटर देन 2 पाई है, हम लोग 2 पाई के पहले ही लेना है, 2 पाई तक जा सकते हैं, इक्वल टू है ना, अगर सिर्फ लेस देन होता तो 2 पाई भी नहीं लेना, बट यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, इट मींस 2 पाई तक जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाना है, हमको सेकंड क्वाड्रेंट तक आना है, सेकंड में साइन और cos की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब की नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे साइन cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, cos x हाफ, cos की कौन सी वैल्यू हाफ है पहले वो देख लेते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं, cos 60 हाफ होता है, माइनस बाहर रखा है, cos 60 हाफ होता है, करेक्ट, cos 60 हाफ होता है। अच्छा, अभी अगला लॉजिक, cos x यहाँ पे लिख लिया, अपने मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आने का मतलब होता है कि पाई माइनस समथिंग, ठीक है। और जब कभी भी याद रखिएगा इसे याद रखना है आपको कि whenever it is पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो पाई प्लस और पाई माइनस होता है तो cos का cos रहता है, आपको मैंने बताया था ना, whenever it is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, देन साइन का cos होता है, tan का cot होता है, sec का cosec होता है, अदरवाइज पाई रहेगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, सो cos का वैल्यू cos ही रहने वाला है, सो हियर वी हैव cos x, 3 with 3 minus 1, 2 pi by 3, cos 2 pi by 3, सॉरी cos तो बाहर है ना, 2 pi by 3, cos कैंसिल, x इक्वल टू 2 pi by 3, तो x की तीन वैल्यूज हैं, 0 है, 2 pi है एंड 2 pi by 3, ओके, अंडरस्टूड। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा नहीं समझा तो मैं इसके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है, ओके, कन्वर्जन आपको समझाऊंगा कॉपी के लिए, थैंक यू।